So hi, Professor Ashish Dek. Welcome, Professor Prashant Pandey, sir, Assistant Professor, Civil Engineering Department, YCC Nagpur, on the topic soil mechanics under Prerna scheme sponsored by AICT. Sir, now I request you to please take over the session. Okay. Thank you, Asif sir. Good afternoon, all. I am Prashant Pandey from YCC Nagpur, and here I am going to deliver a lecture on geotechnical engineering and exclusively focusing on GATE 2021. So all of you have an idea about GATE examination and its syllabus. We are having 1 hour for today's topics or contents. So see, geotechnical engineering is very much important in GATE examination, which carrying nearly 25 to 30% marks. Subject-wise distribution of marks is on your screen. Here you can see the weightage of geotechnical engineering. See the 14.71 means marks are given to the geotechnical engineering, and here the contents, today's contents, which I am going to cover in today's lecture. Another 4 lectures are there that we'll see later on. So today's contents are of soil mechanics are origin of soil structure and fabric, P-phase system and phase relationship, index properties, unified and Indian standard soil classification system, permeability. See, basically the soil mechanics, I'm not going to cover this much theoretical portion. I'm just giving you the brief or thorough idea how to remember, or what are the various techniques to remember the formulas and which formulas we will have to focus. So here in the soil mechanics, the concept of soil mechanics is basically from the formation of soil, which forms from rock due to physical and chemical disintegration, in which temperature changes, waging action. These are these theoretical portions you have already learned, in which residual soil and transported soil, basically 2 types of soil, are classified based on its transportation. And if it is formed at the place of formation, it is called as residual, and another one which is formed away from the place of formation is called as transported soil. And here in transported soil, what will happen, major difference is the properties of residual soil is same as the parent rock. And here major difference from residual is its property are different from the place, means that place of formation, means where it is deposited. If it is deposited on the rock where metamorphic rock will be there, then but the properties are of some another rock, then it is called as transported soil. मतलब transported soil जो होती है उसके properties जो जहाँ पे वो form होती है उससे कुछ अलग होती है. लेकिन रेसिडुअल सॉइल आप देखोगे तो उसके बॉटम में जो रॉक होता है उसकी और सॉइल की प्रॉपर्टीज सेम होती है. दैट इज अ मेजर डिफरेंस. एंड द मेजर डिपॉजिट्स जो इंडिया में डिवाइड की गई है उसको इस तरह के नाम दिए गए हैं: एलुवियल सॉइल, कोलुवियल सॉइल, एवलियन सॉइल, एवलियन सॉइल, ग्लेशियल सॉइल एंड मराइन सॉइल. And how on what basis these names are given? If that soil is formed due to transportation of water, means transportation agency. वाटर है तो एलुवियल बोलेंगे, ग्रेविटी है तो कोलुवियल बोलेंगे, विंड है तो एवलिन, ग्लेशियर है तो ग्लेशियल सॉइल. मीन्स दिस इज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस. एंड इन इंडिया, नॉर्थ इंडिया में एलुवियल सॉइल पाई जाती है, सेंट्रल इंडिया में ब्लैक कॉटन सॉइल.
इस तरह के आपको, और सेंट्रल इंडिया में कुछ जगह पे, मतलब जहाँ पे कोस्टल रीजन है, या फिर जहाँ पे सॉरी कोस्टल, जहाँ पे रेन ज़्यादा होती है, वहाँ पे लैटेरिटिक सॉइल पाई जाती है। और राजस्थान तो आपको पता है डेजर्ट, कोस्टल एरिया में मराइन सॉइल। तो इस तरह से सॉइल डिपॉजिट्स डिवाइड की गई है। अब हाँ, ये सॉइल फैब्रिक्स, सॉइल सॉइल स्ट्रक्चर एंड फैब्रिक्स, ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है और बड़ा टॉपिक है। इसको मैं लास्ट में एक बार आपको थोड़ा आइडिया दूंगा, लेकिन आज मैं जो बेसिक है, जहाँ जो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये लिंक जो है आपकी सिलेबस की, उसी लिंक को लेकर मैं चल रहा हूँ। बाद में आपने 3 फेज सिस्टम देखा होगा, जिसमें ये दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये डायग्राम मैं बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं करूंगा, मतलब एक्सप्लेन नहीं करूंगा। यू हैव ऑलरेडी known about or have idea about this diagram. This is soil skeleton and it consists of soil grains and water. If this is converted into schematic diagram, solid, water and air, अब air रहती है वर्ड्स में, तो वो भी हमने यहाँ पे schematic diagram में बताया है। और here we cannot classify or we cannot define in terms of volume or weight separately in in this particular diagram. Here partially saturated, fully saturated, you all of you know about it. These are the basic formulas which I jot down from the from my notes, and I included that one which you have to learn or remember. वॉल्यूमेट्रिक रिलेशनशिप में ये इनलिस्टेड फॉर्मूलेज आपको याद करना पड़ेगा, which you will have to by heart. And water content, then volume weight relationship. I hope you all of you have all of you familiar with these basic formulas of geotechnical engineering, in which on the basis of which some derivations are there and interrelationships are derived. मतलब ये छोटे छोटे जो फॉर्मूलेज हैं, इससे कुछ बड़े फॉर्मूलेज भी बने हैं। तो वो बड़े फॉर्मूलेज यहाँ पे एनलिस्ट किए गए हैं, जिसमें n इक्वल्स टू ई अपॉन 1 प्लस ई, ये जो रिलेशन है e और n का, वो बताया गया है। और बाकी भी फर्दर रिलेशनशिप है, बट यू exclusively remember up to this. You should remember this also, but exclusively you should focus on this. ये आपको पूरे याद रहना चाहिए, मतलब आपके टिप ऑफ टंग पे ये फॉर्मूलेज रहना चाहिए। जैसे मैंने न्यूमेरिकल्स को फिर क्या किया, जो बेसिक न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं यूनिट 1 से, जो आप अभी हम सेशन देख रहे हैं उसमें से, उसमें मैंने टाइप में डिवाइड किया है उन न्यूमेरिकल्स को। तो हम एक एक टाइप देखेंगे, जिसमें गैमा जी और डब्ल्यू दिया रहता है, गैमा डी ई एस एन निकालना पड़ता है। मीन्स वी विल हैव टू डिटरमाइन, वी विल टू फाइंड आउट गैमा डी ई एस एंड एन। सी दिस इज द न्यूमेरिकल इन टाइप 1, जिसमें गैमा जी और डब्ल्यू दिया है। गैमा डब्ल्यू एंड जी इज गिवन 16, 17, 2.61 यूनिट, ऑल ऑफ यू नो। गैमा का किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, परसेंटेज, and G. By using this input, you will have to get degree of saturation. You will have to find out degree of saturation and porosity. आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे अगर पहुंचना है, तो आपको ये सीक्वेंस ही फॉलो करना पड़ेगा। ये सीक्वेंस आप याद कर लो, गैमा डी ई एस एन। अब ये सीक्वेंस के फॉर्मूले क्या है, तो गैमा डी का फॉर्मूला गैमा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, ये रिलेशनशिप यूज करना है, बिकॉज वी आर हैविंग gamma as well as water content. That's why we will have to use gamma d equals to gamma upon 1 plus w, 16 upon 1 plus 0.17. Here always you used to put water content in decimal, so you will get 13.6. Second is, see again I am following this sequence, gamma d के बाद e equals to g gamma w upon gamma d minus 1। इसका जो मेन फॉर्मूला जो है, ये this is converted from this formula, gamma d is equals to g gamma w upon 1 plus e. Here what will happen, you directly remember this formula instead of converting this formula in terms of e. Directly remember this formula. तो ये आप एडिशनली आपको याद रखना पड़ेगा कि e हम
इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं इफ दिस पैरामीटर्स आर गिवन. नाउ basically what is the formula for E? E is equals to VV upon V, but here sorry, VV upon VS. But here another formula is there, E equals to N upon 1 minus N. Another one formula, this is the another formula. तो ये तीसरा फॉर्मूला हो गया E का आपकी लिस्ट में, G gamma W upon gamma D minus 1. तो ऐसे फॉर्मूलेज जो डायरेक्टली यूज करना है उसको आपको हमारी लैंग्वेज में बताऊंगा कि उसको रटना पड़ेगा. उसके अलावा कोई हमारे पास रास्ता नहीं है, वो ये अपने दिमाग में आप बिठा लो. अब E मिलने के बाद अगेन आई एम फॉलोइंग दिस सीक्वेंस. S के लिए जो रिलेशनशिप है वो कौन सी है? S इक्वल्स टू WG अपॉन E. We'll get 50% by putting the values. And N, if N is in N will ask, then you will have to find out N also. यहाँ पे पोरोसिटी पूछी गई है. डिग्री ऑफ सैचुरेशन और पोरोसिटी तक पहुंचने के लिए हमें गैमा डी ई को पास करना पड़ा, उसके बाद मतलब इसके थ्रू आना पड़ा, और उसके बाद एस और एन तक पहुंचे. तो इसीलिए मैंने टाइप 1 को ये सीक्वेंस दिया है. अब सेम न्यूमेरिकल आपको और कुछ अलग डेटा देके भी पूछ सकते हैं. अब वही ये टाइप 2 है. टाइप 2 में M1 M2 VG दिया है. इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गैमा, इंस्टेड ऑफ दिस गैमा, for gamma these three parameters are given, and along with this water content की जगह पे M1 M2 दिया गया है. weight of water soil and dry weight of soil. तो you can find out the C. M1 M2 V and G is given. तो उसमें ये नंबर्स दिए हैं. अब वो नंबर्स को कैसे यूज किया गया है आगे देखेंगे सॉल्व करने के लिए. M1 M2 V and G is given and we'll have to find out W रो D E S N. अब मैंने रो क्यों यूज किया? बिकॉज हियर kg के टर्म्स में यहाँ पे उसका यूनिट यूज किया गया है. अगर किलो न्यूटन रहता तो हम इसको गैमा इंडिकेट करते हैं, यूनिट वेट बोलते हैं. उसी पैरामीटर को अगर kg या ग्राम में यूज करते हैं या लेते हैं तो हमें वहाँ पर रो यूज करना पड़ता है, उसका नाम चेंज हो जाता है डेंसिटी. बट पैरामीटर इज सेम. Parameter is same, our intention is same. What is our intention is we are going to calculate the weight upon volume या फिर mass upon volume. So here if you are using in kg then you called it as mass, तो इसलिए वो density हो गई. तो density को equals to mass upon volume और unit weight is equals to weight upon volume. weight आता है तो unit weight और mass आता है तो density. यहाँ पे mass है, mass means in kg. तो यहाँ पे केजीज में है इसीलिए हमने रो यूज किया. रो इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे M1 M2 V और G दिया है. हम पहले वाटर कंटेंट निकालेंगे. वाटर कंटेंट निकालने के लिए MW मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ ड्राई सॉइल. तो मास ऑफ वाटर निकालने के लिए आपको पहले टोटल जो मास है मास ऑफ वेट सॉइल माइनस मास ऑफ ड्राई सॉइल माइनस करने पर आपको मास ऑफ वाटर मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय मास ऑफ ड्राई सॉइल मीन्स M2. तो आपको वाटर कंटेंट मिल जाएगा. देन रो इज इक्वल्स टू मास ऑफ, रो मीन्स मास डेंसिटी और बल्क डेंसिटी. तो बल्क डेंसिटी मीन्स वेट लेते हैं या फिर वेट मास लेते हैं. तो वेट मास इज M1 एंड हियर M1 अपॉन V 20 अपॉन 0.001. देन रो डी इज इक्वल्स टू अगेन, अभी यहाँ पे वो सीक्वेंस आपका कंटिन्यूशन में आ गया जो पहले न्यूमेरिकल में था. वो मैं डबल एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज हियर रोडी आपको दिया रोडी ई एस और एन जो मैंने पहले बताया इन प्रीवियस न्यूमेरिकल. सेम सीक्वेंस यू विल हैव टू फॉलो. रो अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, जी रो डब्ल्यू अपॉन रो डी माइनस 1, एस इक्वल्स टू डब्ल्यू जी अपॉन ई, एन इक्वल्स टू ई अपॉन 1 प्लस ई. विल हैव टू रीच अप टू पोरोसिटी. तो ये एक सीक्वेंस आपने अगर याद रख लिया तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स कोई भी न्यूमेरिकल्स आए आपको यू विल हैव टू मोल्ड इट इनटू योर फॉर्मेट. Means what I want to say, don't go in the direction of that numerical. You get that numerical in your direction.
brought that numerical in your direction, मतलब अपने हिसाब से you are on the driving seat, not the numerical or not a paper setter. If you are the a student and you are going to solve your paper, that will be your paper, and you are the person who will decide how to solve that paper. Don't follow the means or don't forget this sequence. Sometimes what happen, paper setter will change the format of explaining these numerical or ask mode of asking question, they will change, but you try to get it in your गिवन डेटा, ये गिवन डेटा के फॉर्मेट में आप लाने की उसको कोशिश करना है. अब टाइप 3 में कुछ इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे कि सॉइल सैंपल हैज अ पोरोसिटी ऑफ 40%. यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, बट formulas are same. See here, in this case what will happen, n and g, only two parameters are given, and from that n you will get e. If e is obtained, e मिलने के बाद आप gamma d मिला सकते हो. gamma d और e मिल गया तो w आप मिला सकते हो, लेकिन w के लिए यहाँ पे कुछ कंडीशन दी रहेगी. तो 50% सैचुरेशन, 50% सैचुरेशन पे आपको यूनिट वेट निकालना है. तो यूनिट वेट निकालने के लिए आपको वाटर कंटेंट लगेगा. 50% के लिए वाटर कंटेंट कितना रहेगा, तो यू will have to follow this formula. W is equals to SE upon G, and then you will get water content, and from this water content you will get gamma D. तो gamma D तक पहुंचने के लिए हमें जो at this percentage means for 50% saturation, gamma D तक पहुंचने के लिए हमें E और gamma D को ही क्रॉस करना पड़ा, मतलब यूज करना पड़ा. बट दिस इज फॉर स्टैंडर्ड 1, मीन्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म में. लेकिन 50% सैचुरेशन के लिए आपको वाटर कंटेंट, उसका वाटर कंटेंट निकलना पड़ा, तो उसका मतलब S इक्वल्स टू 50% का. तो S इक्वल्स टू, बाय पुटिंग S इक्वल्स टू 50%, you will get water content for 50% saturation, and then for 50% saturation what will be the gamma D. For 50% saturation what will be the gamma D. Then you reached again by using this formula of gamma D. तो यहाँ पे दो gamma D के फॉर्मूले यूज हुए. पहला ये स्टैंडर्ड 1 बोलो इसको, और बाद में आप वाटर कंटेंट को यूज करके आपने निकाला. इस तरह से आप ये 50% के लिए हो गया. 100% अगर फॉलो 100% डिग्री ऑफ सैचुरेशन के लिए निकालना है, देन यू will have to follow the same sequence for 100% saturation. See here, gamma D for S equals to 1, water content equals to water content निकालने के लिए अपने used this S equals to 1 and 0.667, and gamma D for 100% degree of saturation. So likewise, this type of numericals from unit 1 in means from phase relationship type of problems, इसी में आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो, उसका कंफ्यूजन दूर निकालने की कोशिश मैंने यहाँ पे की. तो ये एक पार्ट हो गया which is from 3 phase diagram. So this is very important part of this. Then properties of soil. But before that, I want to clear some objective type questions which are mostly asked. और एक नोट आपको ध्यान में रखना है, wait for 1 minute.
See here, this is the kilonewton per meter cube. If your numerical is in kilonewton per meter cube, then you will have to follow gamma value of gamma w, or you will have to use gamma w is equals to 9.81 kilonewton per meter cube. In case of kg per meter cube, use value of gamma w means rho w is 981, and in case of ग्राम पर cc 0.981. लेकिन गेट के एग्जामिनेशन में आपके पास कैल्सी नहीं रहता, तो इसकी वैल्यू राउंड अप करके यूज करना है, सो दैट इट विल बी कैल्सी रहता है लेकिन आपको टाइम कम होने की वजह से या फिर राउंड अप वैल्यूज ही यूज की जाती है 10,000 एंड हियर 1, तो आप डायरेक्टली ये वैल्यूज यूज करोगे तो आपको 22 आंसर मिल जाएगा और आप उसको ऑप्शन में ढूंढ सकते हो. देन हियर द रेंज ऑफ वाटर कंटेंट इज 0 to 300%. इसका मतलब ये है कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन नेवर बी ग्रेटर देन 100%, टेक्स वैल्यू ओनली फ्रॉम 0 to 100%. तो इसका आंसर देखो यहाँ पे दिया डी, इट इज ग्रेट कैन बी ग्रेटर देन 100%. तो आपको ये याद रखना है कि वाटर कंटेंट का जो रेंज है वो 0 to 300% है. अपने दिमाग में ये रहता है कि 0 to 100% है, बट वाटर कंटेंट कैन बी आइदर 150% to 100% और 250% अप टू 300%. तो इसीलिए इसका आंसर इट कैन बी ग्रेटर देन 100%, ये करेक्ट आंसर है. तो वैसे ही रेंज ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन की रेंज वो 0 to 100% ही रहेगी, तो उसमें 0 भी काउंट होता है और 100 भी काउंट होता है. मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन S इज इक्वल टू 0 भी रह सकता है, S इज इक्वल टू 100 भी रह सकता है, और इन बिटवीन 0 to 100 भी रह सकता है. दैट्स वाई valid range of S, the degree of saturation of soil in percentage is, answer is 0 less than or equal to S less than or equal to 100, means it is in between S as well as it is equals to 0 and it is equals to 100. So it's option के बजाय आप लोग को रेंज ध्यान में लो कि S 0 भी रह सकता है, 100 भी रह सकता है, और इन बिटवीन 0 to 100 भी रह सकता है. ऐसे रेंज ऑफ void ratio is 0.3 to 3. ये भी, इसमें भी आप कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप स्पेसिफिक याद रखो कि 0.3 to 3 द रेंज ऑफ वॉइड रेशो. वैसे ही अब यहाँ पे आप टेबल देखोगे तो टेबल में मैक्सिमम वॉइड रेशो आपको किसका दिखेगा? मैक्सिमम वॉइड रेशो जो है यहाँ पे 0.9 की रेंज में दिख रहा है, वो है सॉफ्ट क्ले का. देखो, लेकिन हम उसके साथ साथ पुअरली ग्रेडेड सॉइल का, तो ये दो सॉइल आप लोग याद रखो कि ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा वॉइड रेशो रहता है सॉफ्ट क्ले का, उसके बाद ये फाइन ग्रेन सॉइल में हो गया, और कोर्स ग्रेन सॉइल में सबसे ज़्यादा रहता है पुअरली ग्रेडेड सैंड विथ लूज डेंसिटी. वैसे वो कम कम होते जाता है कि यहाँ तक कोर्स ग्रेन सॉइल है. up to this coarse grained soil, and from this फाइन ग्रेन सॉइल. अब फाइन ग्रेन सॉइल में सॉफ्ट क्ले का सबसे ज़्यादा है, सबसे कम है 0.25 मीन्स सॉफ्ट ऑर्गेनिक क्ले का. तो ये 4 सॉइल आपको याद रखना है. एक ये फाइन ग्रेन सॉइल में से ये, देन वेल ग्रेड पुअरली ग्रेडेड sand, and with loose density, and well graded sand, मिनिमम रहेगा उसका डेंस सैंड, और यहाँ पे लूज सैंड. ये आपको लूज सैंड, डेंस सैंड, ऐसे सॉफ्ट क्ले एंड ऑर्गेनिक क्ले. देन रेंज ऑफ पोरोसिटी इज 0 to 100%. सी ग्रेवल के लिए 0.25 to 0.4 और क्ले के लिए 0.4 to 0.7. क्ले में पोरोसिटी ज़्यादा मिलेगी आपको एज कंपेयर टू ग्रेवल. तो ग्रेवल में कम रहती है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इधर से 0 to 100%, तो ये
कोर्स ग्रेन सॉइल से बढ़ते हुए जाती है टूवर्ड्स क्ले फाइन ग्रेन सॉइल। थोड़ा सा रेंजेस के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। एंड कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल it is divided into index properties and engineering properties, in which here in this particular content we are focusing on index properties. Actually properties are these two, index and engineering. It is classified into two, but in this part index properties are to be studied for characterizing or for classifying the soil. Soil को classify करने के लिए हमें ये properties पढ़ना पड़ता है. We can say these properties are used to classify or characterize the soil, and these properties, engineering properties, are used to determine the strength, mostly the strength, permeability, consolidation, compression और swelling shrinking behavior. तो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज का नाम जब आता है तो shear strength पहला रहेगा, बाद में कंसोलिडेशन, फिर परमेबिलिटी, तो ऐसे इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज कहलाती है. तो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज निकालने के लिए थोड़े से ज़्यादा मेहनत लगती है, और इंडेक्स प्रॉपर्टीज जल्दी निकल जाती है. तो वाटर कंटेंट आपको पता है, सॉरी पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी हम देखेंगे. स्पेसिफिक ग्रेविटी में द फॉर्मूला यूज्ड इज दिस M2 M1. ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. M2 क्या है, M1 क्या है, आपको पता है तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है. M1 मीन्स एम्प्टी वेट ऑफ पिक्नोमीटर और डेंसिटी पोर्टल. M2 इज पिक्नोमीटर प्लस सॉइल. M3 मीन्स पिक्नोमीटर प्लस सॉइल प्लस वाटर. M4 मीन्स पिक्नोमीटर प्लस वाटर. Here again you will have to remember the range. See the range of specific gravity. ये एक दो डेसिमल का ही डिफरेंस है, बट यू शुड नो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा किसकी रहती है. तो देखो यहाँ पे सिल्टी क्ले की रेंज ज़्यादा दिख रही है और ऑर्गेनिक क्ले की सबसे कम. इन बिटवीन दैट सैंड एंड सिल्ट विल बी देयर. ये इंटरमीडिएट में आ गए. तो सबसे हाईएस्ट क्ले और ये इसकी लोएस्ट. Then index properties में water content, for determining water content various tests are there. Oven drying, sand bath, alcohol method, then calcium carbide method, picnometer method. In this oven drying method is called as most accurate method, wherein other methods are, these are mostly used in field. And this is in lab. This is also in lab. ये लैब मेथड है. अब ये इसमें से सबसे एक्यूरेट में ओवन ड्राइंग मेथड है. तो इसका कंसेप्ट एक ही है कि आपको पहले वेट ऑफ सॉइल लेना है और उसको 24 घंटे के लिए 105 to 110 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है अप टू 24 hours. Then after 24 hours you will have to take the weight of dry soil, and after getting that weight, standard formula is there, W2 minus 3 W upon W3 minus W1. तो इस यहाँ पे आप एक नंबर याद रखो, 2 3 3 1. सिर्फ आपको इतना पता रहना चाहिए कि ये वेट ऑफ कंटेनर है, ये वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट सॉइल, weight of container plus dry soil, that you should know. Then you use this 2 3 3 1. See, 2 3 3 1, 2 3 न्यूमरेटर में, 3 1 डिनोमिनेटर में. सिर्फ बीच में क्या है, सब्सट्रैक्शन. तो वहाँ पे टाइम पे आप फॉर्मूला बनाने में टाइम वेस्ट करने के बजाय उसको याद कर लो. Only in another method only the mode of heating is changed. Here mode of heating is O1. Here mode of heating is, see,
the stove and the pan. Here mode of heating or mode of evaporating the soil is alcohol, and here mode of evaporating soil is calcium carbide. तो वो जो वाटर रहता है उसका एसिटिलीन गैस के फॉर्म में वो एस्केप हो जाता है. दैट्स व्हाई हियर द कैल्शियम कार्बाइड इज यूज्ड फॉर एज अ मोड ऑफ इवेपोरेटिंग दिस वाटर फ्रॉम सॉइल. अपना अल्टीमेट पर्पस वही है कि आपको सॉइल को ड्राई करना है. इट मीन्स यू विल हैव टू evaporate water from the soil. So only the mode of heating is change. So you just remember that mode of another or other method is same. In pycnometer method, same procedure as pycnometer method is followed, and but in this case the specific gravity of the soil should be known to us. If specific gravity is known to us, then we will have to use this formula also. Again, I'm telling you, you remember this formula. Sometimes that type of numerical may ask in which the specific gravity is given and you will have to calculate the water content. Specific gravity अगर दिया है numerical में और कुछ masses दिए हैं, means mass of dry soil, mass of this, then you will have to you think in that direction that this numerical, if G is given and water content is to be asked and various masses are given, then you will have to go for pycnometer method, or you will have to use this formula for calculating water content. So remember this formula. This formula is very, very important in for calculating water content. Now come to particle size distribution. In this major जो आपको स्केल दिख रही है यहाँ पे, in this the major part to remember is 4.75. Very first, 75 micron. See, in from this point, the coarse grain and fine grain is divided. फाइन ग्रेन को और कोर्स ग्रेन को डिवाइड करने का काम 4.75 माइक्रोन 75 माइक्रोन सीयू करती है, एंड इट इज आल्सो denoted as 0.075 mm in mm. In this coarse grain, in this fine grain sand, again it is divided into two parts, clay and silt. Major parts, clay and silt, which is divided by using this sieve, 2 micron. So remember these sieves. Then come to coarse grain. Coarse grain को डिवाइड करने का मेजर पार्ट जो है वो सैंड और ग्रेवल को डिवाइड करने का, इसको फिलहाल ध्यान में मत लो, बट यू जस्ट हैव एन आइडिया दैट greater than 60% and less than 200% is cobalt, and boulder is greater than 200 mm. But the mostly in examination they are asking the question based on sand and gravel, silt and clay. Silt and clay की range 0.075 to 0.002 mm. Sand की range 0.075 to 4.75, means that it should passing through 4.75. 4.75 की सीव आपने देखी है, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे सैंड सीविंग किया जाता है, मीन्स रेती छानते हैं, तो रेती छानने का काम जो होता है वो 4.75 की बड़ी सीव होती है. आपने देखा होगा कन्वेंशनली व्हेन स्मॉल हाउसेस आर टू बी कंस्ट्रक्टेड, 4.75 mm sieve was used for screening that sand. अब ऊपर जो बचता था वो ग्रेवल. sieve analysis तो आपको पता है, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट और एक्सप्लेन दिस, बट आई directly come to these parameters D10, D30, D60. एक ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है क्विज़ेस में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इफेक्टिव साइज. तो इफेक्टिव साइज मतलब D10 होता है, इतना याद रखना. इफेक्टिव साइज, इसको इफेक्टिव साइज बोला जाता है. अब ये जो D10, D60, D30 ये किस लिए हम निकालते हैं? तो फॉर कैलकुलेटिंग CC एंड CU, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर एंड कोएफिशिएंट of uniformity. See,
इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें कुछ कमेंट देनी पड़ती है आफ्टर सॉल्विंग सम न्यूमेरिकल. सो बेस्ड ऑन दिस दैट न्यूमेरिकल विल सी द हाउ टू give comment based on these two parameters. See here, after solving a numerical, आपने ग्राफ निकाला होगा, उसके बाद सी सी और सी यू निकाला होगा, तो ये ग्राफ से आपको सी 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 यू मिल जाता है. वो मैं फिर से बैक जाऊंगा, लेकिन बिफोर दैट आई वांट टू क्लियर व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू analyze or we want to observe. We have to observe the value of cc and cu, wherein सीसी की रेंज 1 to 3 के बीच में रहनी चाहिए, तभी वो वेल ग्रेडेड सैंड कहलाएगी. अगर वो सीसी की वैल्यू 1 to 3 के बीच में नहीं है तो वो पुअरली ग्रेडेड कहलाएगी. ये हो गया वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड. मतलब मैंने अभी तक ये आंसर निकाला. अब वो सैंड है या ग्रेवल है, ये हम कहाँ से पता करेंगे? तो सी यू से. इफ सी यू की वैल्यू, इफ value of Cu is greater than 4, then it is gravel. If Cu is greater than 6, then it is gravel. तो यहाँ पे ये 6 से ग्रेटर है, ग्रेटर देन 6 मतलब ग्रेवल, और ग्रेटर देन 4 मतलब सैंड. सॉरी, यहाँ पे ग्रेवल चाहिए और यहाँ पे सैंड चाहिए. तो ग्रेटर देन 4 ग्रेवल, ग्रेटर देन 5 सैंड. यहाँ पे सॉरी ग्रेटर देन 6, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 6 आ रहा है, तो ये सैंड रहेगा. सी यहाँ पे वही कमेंट्स दिए हैं, वो कमेंट्स आपको ध्यान में लेना है. इफ इज ग्रेटर देन 6, 6 से अगर बड़ी है तो सैंड, सी यू 4 से अगर बड़ा है तो ग्रेवल. तो ये लास्ट वाला हम बताते हैं. मतलब लेकिन वो वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है, ये कहाँ से पता चलता है हमें? सी से. तो ये जो दो पैरामीटर्स है, अब यहाँ पे ये आपको ग्रेड बताता है, सी और सी यू. ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि ग्रेडेशन ऑफ सॉइल इज बेस्ड ऑन विच कोएफिशिएंट. तो कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर और यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट, देन यू शुड से द कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर. फिर यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट का काम क्या है? यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट का काम यही है कि वो ग्रेवल और सैंड को डिफरेंशिएट करता है. ठीक है, तो ये ग्रेड डिफरेंशिएट डिफाइन करता है. और ये सॉइल टाइप डिसाइड करता है. Now, this is the basic concept behind this. Other further you have already studied in theoretical part in classroom teaching. Now, consistency of soil. See, in consistency of soil, basically or directly you should know liquid limit, plastic limit and shrinkage limit. तो ये ऐसी लिमिट्स है जो कि अब यहाँ से मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको कि मिट्टी को पूरा आप इतना उसको भिगोना है. यू विल हैव टू ऐड वाटर so that soil is flowing like a mud or water. वो मड जैसा उसका फॉर्म होना चाहिए. तो मड़ी सॉइल को आप जैसे कुछ दिन के बाद तो सूखेगी, तो वो जो सूखने की प्रोसेस है वो यहाँ पे इमेजिन करना है. अब ये मड है, ये एक सॉइल सैंपल है, उसको मैंने मड के फॉर्म में उसको लेके आया हूँ. मड़ी सॉइल को आप जब जैसे जैसे सुखाते जाओगे तो ये वही प्रोसेस है. When it starts drying, see, liquid state means muddy soil. When you start drying, then one stage or one water content will that soil will achieve. That water content is called as liquid limit. When it
passes from or it converts from liquid stage to plastic stage. Plastic stage means it is moldable stage, जिसमें हम कोई भी शेप में उसको मोल्ड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्लास्टिक स्टेट. तो जैसे ही ये इसमें एंटर करती है ऐसा वाटर कंटेंट जहाँ से वो एंटर करती है फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज, दैट विल liquid limit, then plastic limit, plastic stage to semi-solid stage, and semi-solid state to solid state. तो shrinkage limit. ये लिक्विड लिमिट कब मिलता है? जब ये जो ग्रू है ये मिलता है, ये ग्रू रहता है 12 mm का. ये और आप जब ग्राफ निकालते हो सेमी लॉग पे तो ऐसे लाइन मिलती है. फिर आपको जो 25 नंबर यहाँ पे सपोज 25 नंबर ऑफ ब्लोज वाला पॉइंट ये है, with respect to that 25 number of blows you will have to take a straight line, and with respect to that find out the sorry here is the 25 number of blows, and you will have to take line from this and get the respective water content. Here you will get some water content either 30 or something, तो 30% आपका लिक्विड लिमिट हो जाएगा. तो 25 नंबर ऑफ ब्लोज के रिस्पेक्ट में आपको वाटर कंटेंट मिलाना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन. See, these are the various values. No need to remember these values, but you should know the range, at least a range of some soils. तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जिसकी लिक्विड लिमिट ज्यादा रहती है वो इट इज मोर प्लास्टिक. अब लिक्विड लिमिट ज्यादा है ना, मतलब उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो वो मोर प्लास्टिक सॉइल है. उसको प्लास्टिक सॉइल बोलते हैं जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा रहती है. अब वो प्लास्टिक सॉइल में यहाँ पे देखो मोंटमोरेलोनाइट का और ये इसका लिक्विड लिमिट आपको ज़्यादा दिख रहा है. तो इसमें कुछ ऐसे केमिकल ये है, जैसे मोंटमोरेलोनाइट नाम के मिनरल, ये मिनरल्स है. तो ये जो मिनरल्स है, ये मिनरल्स क्या करते हैं, इट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई वाटर इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट मिनरल, एंड ड्यू टू विच दैट विल हैव सम बॉन्ड विथ वाटर. मतलब वो मिनरल और वाटर जो बॉन्ड करते हैं, उस बॉन्ड की वजह से पानी एब्सॉर्ब करने की उनकी जो ताकत होती है वो ज़्यादा रहती है. इट एब्सॉर्ब्स वाटर. एब्सॉर्ब मतलब वो सरफेस पे उसको एक बॉन्ड बनाती है, इट फॉर्म्स ऑन बॉन्ड. इन मोंटमोरेलोनाइट इट इज मोर एज कम्पेयर टू अदर. तो मोंटमोरेलोनाइट ये ब्लैक कॉटन सॉइल में पाया जाता है, इसीलिए आपको ब्लैक कॉटन सॉइल की आप लिक्विड लिमिट अगर गिनोगे तो उसकी लिक्विड लिमिट ऑलवेज ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू अदर मिनरल्स. और अगर हम देखेंगे तो ये जो भी वैल्यूज है हाइडेलबर्ग लिमिट्स, ये सिर्फ क्ले के लिए निकाली जाती है, नॉट फॉर क्ले या फिर क्लेई सिल्ट. लेकिन कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए ये नहीं निकाली जाएगी. कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए ये प्रॉपर्टी अप्लीकेबल नहीं है. कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए ये अप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ फाइन ग्रेन सॉइल के लिए अप्लीकेबल है. अब इसके लिए आपको ये फॉर्मूलेज याद रखना पड़ेगा, जिसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं. सिंपल फॉर्मूलेज है, आईपी प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल्स टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, एंड लिक्विडिटी इंडेक्स इज डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू पी अपॉन आईपी. तो इसके बेस पे इस टाइप के से न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे. सी दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स आर देयर. लिक्विड लिमिट ये कुछ नहीं, आपको क्या करना है, गिवन डेटा निकालना है. गिवन डेटा निकालने पर directly you will have to put the values and get answers like that. This type of numericals are there, but you should know you should know these formulae. ये लिस्ट है, ये लिस्ट का स्नैपशॉट आप निकाल लो. ये लिस्ट आपको फॉलो करना है जिसमें W1 माइनस W2. अब ये एक ऐसा वाटर कंटेंट रहता है, W1 मीन्स इट इज ऑलवेज ग्रेटर
विथ रिस्पेक्ट टू दैट N1 जो आपको यहाँ पे मिलता है, ये अगर W1 लिया ये ग्राफ से 51 अगर आपका W1 है तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट N1 रहेगा। तो 52 के रिस्पेक्ट में यहाँ पे 18 आ गया। दूसरा W1 जो है वो छोटा लेना है, 48 के रिस्पेक्ट में दूसरा एक वाटर कंटेंट सपोज 30 मिला, तो N2 इज 30। अब देखो W1 52 है, W2 ये W1 है और ये W2 है। W2 आपको दिख रहा है 48 में छोटा है, तो ऐसे ही यहाँ पे लिया है। ये W1 W2 N2 N1 N2 with respect to W2 30 upon 18. So likewise you get this, and in case of this liquidity index formula, this simple W is natural water content, which is always given in the numerical. Natural water content एक दिया रहेगा। See, if the water content of soil in its natural condition is 20%, other than this liquid limit and plastic limit के अलावा एक ऐसा वाटर कंटेंट दिया रहेगा जो आपको लिक्विडिटी इंडेक्स निकालने के लिए काम में आएगा। और ये WP मतलब तो ये प्लास्टिक लिमिट है, तो प्लास्टिक लिमिट 15% और ये 20%, तो ये 20 माइनस 15 मीन्स 0.2 माइनस 1.15 अपॉन IP। तो ऐसा ये पैरामीटर्स आपको देखना है। In this case, see here the various ranges. Again, I'm covering the ranges in which soft soil, soft consistency के base पे if consistency index is 0 to 25 and greater than 100, तो 0 से 25 के बीच में soft कहलाती है और greater than 100, तो इसकी range क्या हुई consistency की 0 to 100। तो 0 to 25 मतलब soft, उसके बीच में जो भी आते हैं वो soft, जो clay, ये सब clay soil के लिए ही है। जैसे जैसे वो steep होते जाएगी वैसे वैसे that will be going to hard and its value is increasing। तो consistency index जितना ज़्यादा उतनी वो clay hard रहेगी और जितना कम उतना soft रहेगी। वैसे ही compressive strength QU, हार्ड सॉइल का QU 400 से ज़्यादा रहता है और लेस देन 25 उसका सॉफ्ट रहता है। तो यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि ये थंब से प्रेस होती है, ये थंब से प्रेस नहीं होती है। यहाँ पे तो वेरी डिफिकल्ट टू इंटेंड द थंब। सेंसिटिविटी ऑफ क्ले एक एडिशनल पैरामीटर है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इन विच द अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब क्ले एंड डिस्टर्ब क्ले, डिस्टर्ब और अनडिस्टर्ब रहता है या फिर यहाँ पे डिस्टर्ब की जगह पे रिमोल्डेड रहेगा और अनडिस्टर्ब की जगह पे नेचुरल रहेगा। तो ऐसे वर्डिंग्स के न्यूमेरिकल आते हैं और आपको इस में वैल्यूज पुट करना है। डायरेक्टली वैल्यूज गिवन रहेगी इन दिस फॉर्म, द natural unconfined in the unconfined compressive strength in natural state is this much kilonewton per meter square, and natural के opposite remolded, undisturbed के opposite disturbed। नेचुरल और अनडिस्टर्ब मतलब सेम है और रिमोल्डेड और डिस्टर्ब मतलब सेम है। सी द सेंसिटिविटी के बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं हम सॉइल को। तो इसकी रेंजेस 1 to 16 है, ग्रेटर देन 16 है, तो उसकी सेंसिटिविटी यहाँ से चेक की जाती है। तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है तो 16 के अबव उसकी वैल्यू आएगी और लेस सेंसिटिविटी 1, बिटवीन दैट डिटेल, मॉडरेट एंड एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी nomenclature is given. Sometimes activity of clay may ask, and formula is A is equals to IP means plasticity index upon clay fraction। तो ये फाइनर देन 2 माइक्रोन मतलब परसेंटेज, सॉरी, क्ले फ्रैक्शन कहलाता है।
तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर क्लेई सॉइल ओनली। तो एक्टिविटी निकालने के लिए भी ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इन केस समटाइम्स इट में आस्क। देन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, तो ये वेरियस क्लासिफिकेशंस है। आपको गेट के सिलेबस में मोस्टली यूनिफाइड और आईएस सॉइल क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, इन विच यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन or IS soil classification is nearly same. There is no major difference between these. That's why you just follow IS soil classification, because we are generally following the IS code that and in which IS soil classification is followed. But if sometimes USCS classification system as per USCS classification system may ask, but still then also you continue with IS soil classification. You can continue because आईएस सॉइल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन यूएससीएस, मतलब यूएससीएस से ही वो आईएस बना हुआ है। तो मैं आपको डायरेक्ट आईएस सॉइल क्लासिफिकेशन बताऊंगा। तो आईएस सॉइल क्लासिफिकेशन में मोस्ट जो मैंने एक स्केल बताई थी आपको, वो स्केल फॉलो करना है। स्केल में कोर्स ग्रेन सॉइल 75 माइक्रोन से ऊपर, 75 माइक्रोन से नीचे फाइन ग्रेन सॉइल। अब कोर्स ग्रेन सॉइल में आओ, कोर्स ग्रेन सॉइल में 4.75 से ऊपर, हियर gravel, in this direction it is sand। तो इसके नॉमेनक्लेचर कुछ इस तरह से है, GW, GP, GMA आप सब लोग देख चुके हो। इसमें आपको ये तो कोर्स ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन हो गया, पुअरली ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड। ये तो आप इससे निकाल सकते हो कि वेल ग्रेडेड मतलब GW, पुअरली ग्रेडेड GP, सिल्टी ग्रेवल मतलब M स्टैंड्स फॉर सिल्ट। ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए M को याद रखना। बहुत बार बहुत स्टूडेंट्स M को भूल जाते हैं। M मतलब सिल्टी इन नॉमेनक्लेचर ऑफ सॉइल, एंड GC मीन्स C मीन्स क्लेई ग्रेवल्स। वैसे ये जो सेकंड नाम है ये पहले लेना रखना है, और जो लास्ट नाम है वो बाद में। तो वेल ग्रेडेड सॉइल, पुअरली ग्रेडेड सॉइल, सिल्टी ग्रेवल, क्लेई ग्रेवल, वेल ग्रेडेड सैंड, पुअरली ग्रेडेड सैंड। तो उल्टा पढ़ना है इसको, सिल्टी सैंड, क्लेई सैंड। देन कम टू fine grained soil. So less than 75 मतलब 75 माइक्रोन से पासिंग मतलब फाइन ग्रेन्ड सॉइल। और फाइन ग्रेन्ड सॉइल को दो हिस्सों में बांटा गया है, सिल्ट और क्ले में। अब इसको क्लासिफाई करने के लिए साइज इंपॉर्टेंट नहीं है, तो प्लास्टिसिटी चार्ट। अब मैं प्लास्टिसिटी चार्ट, ये प्लास्टिसिटी चार्ट किस लिए है? फाइन ग्रेन्ड सॉइल को क्लासिफाई करने के लिए। मतलब इसका क्लासिफिकेशन जो है, जैसे मैंने यहाँ पे साइज के बेस पे किया था, यहाँ पे साइज के बेस पे ना करते हुए here we will have to follow प्लास्टिसिटी चार्ट। ये भी आईएस कोड में दिया हुआ है कि अगर आपको फाइन ग्रेन्ड सॉइल क्लासिफाई करना है तो प्लास्टिसिटी चार्ट यूज करना है। प्लास्टिसिटी चार्ट कैसे यूज करते हैं? तो ये प्लास्टिसिटी चार्ट आपको एक एक यहाँ की स्केल मतलब ये जो यूज किए गए हैं यहाँ पे, एक्स एक्सिस पे लिक्विड लिमिट, वाई एक्सिस पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स, और ये जो लाइन निकली है ए लाइन, ये 20 लिक्विड लिमिट से निकली हुई है। और उस लाइन का इक्वेशन भी आपको याद होना, 0.73 WL - 20। उसके साथ साथ एक लाइन यहाँ से निकली है 50, और एक लाइन 35 से निकली हुई है। इसके बीच में I रहता है, और ये L और ये H, ये ऐसे जोन डिवाइड किए गए, 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया हुआ है। अब वो 3 हिस्सों में जो डिवाइड किया हुआ है उसको कैसे यूज किया जाता है क्लासिफाई करने के लिए? L मतलब लो प्लास्टिसिटी, I मतलब इंटरमीडिएट, एंड हाई, H means high. Now we are having 5 another minutes. I'm taking 5 minutes more to close this meeting or class. I just want to clear you the how to classify the soil. ये गेट का 2012 में पूछा गया एक क्वेश्चन है, जिसमें ISCS मतलब IS इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम, ISCS के हिसाब से सिल्टी क्ले को क्लासिफाई करना है, which is having liquid limit WL 40% and plasticity index 28%।
अभी लिक्विड लिमिट दी है 40 और इंडेक्स दिया है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स दिया है 28%। उसको क्या करना है, तो आपको आईपी लेना है पहले 28%। आईपी मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स, और आईपीसी दूसरा एक आईपी निकालना। आईपीसी मतलब चार्ट वाला, ये आईपीसी। आईपीसी से आपको क्या करना है 0.73 डब्ल्यू माइनस 20 ये इक्वेशन लेना है और उसमें लिक्विड लिमिट पुट करना है जो आपको इसमें दी है 40%। पहले आपने क्या किया, ये वाली वैल्यू यूटिलाइज की, हो गया, ये वैल्यू यूटिलाइज हो गई। अब ये वैल्यू बची है, ये वैल्यू इक्वेशन में यूटिलाइज करना, तो आपको दूसरा आईपी मिलेगा। तो वो आईपी मिलता है 14.6। अब ये 14.6 जो मिला, वो 14.6 को ये जो आईपी की एक्सिस है वहां से उसको एक्सटेंड करना अप टू दिस लाइन। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलेगा, ये हो जाएगा 14.6 वाला पॉइंट। 14.6 वाला पॉइंट, तो यहां से आप जब अबो दिस लाइन कैसे जाओगे, तो ये आईपी जो आपको गिवन है, आईपी गिवन है उसमें 28%, यहां से आपको इसको प्रोजेक्ट करना है, ये लाइन ऊपर खींचना है और यहां से यहां तक प्रोजेक्ट करना है। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट करने के बाद ये पॉइंट जहां पे लाई हो रहा है, तो वो पॉइंट आपका कहलाएगा अब above this line it is clay, below this line it is silt। और अब ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्ले में आ गया, और ये अभी लो है, इंटरमीडिएट है या फिर हाई है, वो कहां से पता चलेगा, क्ले विथ इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी। तो आपकी सॉइल क्लासिफाई होगी CI। तो आपका आंसर क्या हो गया, ये। आई होप यू अंडरस्टैंड। पहले आपको आईपीसी निकालना है, बाद में आईपी की वैल्यू लोकेट करना है फ्रॉम दिस पॉइंट और अबोव दिस पॉइंट, और इट कैन बी बिलो दिस पॉइंट। अगर आईपी मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स अगर 10 होता, तो 10 यहाँ पे आता, ये लाइन के नीचे, तो ये कौन सी हो जाती, ये आ गया सिल्ट में, बिलो दिस लाइन इट इज, बिलो दिस लाइन इज सिल्ट, और इन बिटवीन दिस आई, तो वो क्या हो जाता, MI, इंटरमीडिएट सिल्ट विथ इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी। इसको पढ़ते कैसे हैं, तो क्ले विथ इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी, क्ले विथ लो प्लास्टिसिटी, इसको सीधा पढ़ते हैं। जैसे कोसगेन सॉइल में उल्टा पढ़ते हैं, तो यहाँ पे पहले आपको क्ले, सिल्ट और इंटरमीडिएट, लो और हाई बाद में लगाना है, पहले सिल्ट और क्ले, देन दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स में आस्क इन गेट क्वेश्चंस। तो ये उसके कुछ सैंपल न्यूमेरिकल्स है विच हैव ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन गेट एग्जामिनेशन, जैसे 2016 में पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पढ़ना है, इसका स्नैपशॉट निकाल लो और इसको ट्राई करो, मैंने जैसे आपको बताया वैसे सॉल्व करने का। ये कोर कटर सैंड रिप्लेसमेंट आप पढ़ चुके हो। नाउ कम टू द परमिएबिलिटी। इन दिस परमिएबिलिटी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको सबसे मेजर जो पार्ट है मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दो फॉर्मूले, दिस फॉर्मूला इज फॉर फॉलिंग हेड, falling head, this is for constant head, ये दो फॉर्मूले एटलीस्ट याद रखो, और फिर जो लॉजिक लगाना है वो टाइम पे लगाते हैं। जैसे भी इस क्वेश्चन में जैसे दिया, क्लियर कट दिया है कि टू सॉइल स्पेसिमेन, थोड़ा सा केयरफुली रीड करना है न्यूमेरिकल को। आइडेंटिकल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आइडेंटिकल मीन्स ऑल प्रॉपर्टीज आर सेम। आइडेंटिकल डायमेंशंस मीन डायमेंशंस आर सेम फॉर बोथ द सैंपल्स। तो न्यूमेरिकल अगर केयरफुली पढ़ेंगे तो परमेबिलिटी टेस्ट इन लेबोरेटरी अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। तो इन दिस टू सॉइल स्पेसिमेन आइडेंटिकल कंडीशन में, जैसे सेम सॉइल सैंपल्स आर टेस्टेड इन लेबोरेटरी, द फॉल ऑफ वाटर हेड मेजर्ड was measured after an identical time interval, the ratio of
फाइनल वाटर हेड्स फॉर द टेस्ट इन्वॉल्विंग द फर्स्ट स्पेसिमेन वाज 1.25। तो जो फॉलोइंग हेड है उसका रेशो मतलब H1/H2, इनिशियल एंड फाइनल हेड का रेशो 1.25 है। तो H1/H2 की वैल्यू कितनी होगी? 1.25। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सेकंड स्पेसिमेन इन 5 इज 5 टाइम्स दैट ऑफ फर्स्ट, मींस K1 हम लेते हैं तो इज 5 टाइम्स K2, सॉरी K2 इज 5 टाइम्स K1। ये दो कंडीशंस इसमें दी है, K2 इज 5 टाइम्स K1। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिया है। H1/H2 इज 1.25, K2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स K1। K1 इज इक्वल टू हमने फॉर्मूले में पुट किया 2.303 EL/80 log to the base 10 1.25। K2 इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला, बट in K1 what they have given already, this is given in numerical। in this case K की वैल्यू गिवन है, K2 की वैल्यू 5 टाइम्स K1 है, तो हमने वो पुट किया। अब ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इसको हमने इक्वेट किया या फिर सॉरी K1 की वैल्यू इसमें पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ K1 इन इक्वेशन 2। तो वैल्यू ऑफ K1 इन इक्वेशन 2 में हमने पुट किया। तो इसमें ये जो इक्वल पार्ट है, मतलब जो सेम पार्ट है, वो 2.30 कांस्टेंट वाला पार्ट, आइडेंटिकल पार्ट हमने कैंसिल कर दिया और कुछ इस तरह का इक्वेशन मिला। बाद में H1/H2 की ही वैल्यू हमें निकालना है। द रेशियो ऑफ इनिशियल टू फाइनल हेड्स इन टेस्ट इन्वॉल्विंग द सेकंड स्पेसिमेन। सेकंड स्पेसिमेन में H1/H2 कितना यूज किया गया? तो H1/H2 3.05 आंसर आया। दिस इज द आंसर। तो ऐसा हमें अगर फॉर्मूलेस पता रहे और ये कंडीशन हमें समझ गई, ये सब अपने को ही समझना है वहाँ पे, तो थोड़ा सा केयरफुली रीड करना है, बाकी कुछ नहीं। इस तरह के कुछ जो भी फॉर्मूलेज है बेसिक अगर क्लियर रहे तो गेट क्लियर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो मैं ऐसे ही कुछ बेसिक्स और आगे के न्यूमेरिकल्स लेक्चर में बताऊंगा। जैसे कि ये कंडीशन है फॉर वैलिडिटी रो वी डी बाई म्यू लेस देन और इक्वल टू 1। इन दिस केस ओनली डार्सीज लॉ इज वैलिड। और ये इक्वेशन सीपेज वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज वेलोसिटी इज इक्वल टू Kp/k, या फिर V इक्वल्स टू Vs इंटू n। ये रिलेशन आपको याद रखना है। दिस रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू V/n। सीपेज वेलोसिटी इज इंडिकेटेड बाय Vs, डिस्चार्ज वेलोसिटी इज V अपॉन पोरोसिटी। पोरोसिटी का रिलेशन अगर 1+e का पुट करते तो ये इक्वेशन ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये मेरा एक सजेशन है कि आप पूरे फॉर्मूले एक कॉपी में एनलिस्ट करो। और भी कुछ है बट ड्यू टू टाइम कांस्टेंट आई विल टेक इट in short. See in this also, yes, these are simple numericals based on falling head permeability test. So this basic formula is used. एवरेज परमेबिलिटी पैरेलल टू बेडिंग प्लेन के लिए ये फार्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे कुछ जो भी फार्मूले आते हैं वो फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये एक रिलेशन है, एक स्टैंडर्ड रिलेशन है, Kx इज ऑलवेज ग्रेटर देन Kz। ये प्रूफ किया गया है, ये प्रूफ है उसका। तो Kx इज ऑलवेज ग्रेटर देन Kz, इतना याद रखना बस। मीन्स एवरेज परमेबिलिटी पैरेलल टू बेडिंग प्लेन इज ऑलवेज greater than perpendicular to bedding plane. So this much is sufficient for today's lecture, and in we'll continue in next session. So I request Asif sir to conclude today's lecture. Thank you very much for taking such a wonderful lecture. Okay, thank you sir. This session for the first session. If students, if you have queries, please. Anybody is having questions?
Okay. No. Hello. Okay, Nilesh, please. Okay, Nilesh, please. Yes, Nilesh. सर एक पूछना था, आपने पोरोसिटी के बारे में जो बताया हम्म कि ग्रेवल से लेके क्ले तक 0 to 100% तक बढ़ती जाती है, हम्म तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर हम्म ग्रावल के लेयर में हम जो पानी डाला तो पानी तो पूरा नीचे चला जाएगा, और क्ले में अपन पानी डालते हैं तो क्ले कुछ ना कुछ पानी एब्सॉर्ब करेगा, तो उसकी पोरोसिटी कम रहेगी ना सर? कि पोरोसिटी की आप डेफिनेशन देखो या फॉर्मूला देखो, वी अपॉन टोटल वी, टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में। हम्म। तो मतलब मैथमेटिकली सोचो, प्रैक्टिकली मैं बाद में आऊंगा प्रैक्टिकली, ओके। बट फर्स्ट यू गो इन द डायरेक्शन एनालिटिक का डायरेक्शन। हम्म। एनालिटिक में जैसे यहाँ पे वी एन इक्वल्स टू हम्म। वी अपॉन वी, राइट। अब यप। वी जो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, हाँ। in case of any soil, volume of ओके। voids may be equals to v, may be, it is not practically, it is not possible. ओके। Sometimes some values practically are not possible, but analytically it may be possible. हम्म। So in case of 0 to 100, हम्म। in case of 0 to 100, you are focusing on 100, you are concentrating on 100. That's why I'm telling you when it will be 100%. ओके। When it will be 100%, when these two are equal, हम्म। right? राइट। Either vv is equals to v or v equals to v. राइट। In this case means in the three phase diagram, see here, हम्म। this is vv, हम्म। this is टोटल भी। total v, यस। right? यस So, सर। so is it possible that vv equals to vv? नो। Yes, Nilesh, is it हेलो। possible? Is it possible in any case हम्म। that vv is equals to v? Is नहीं। it possible or not? नो। No, but analytically what will happen sometimes that these voids, hello. यस सर। यस सर। Yes, these voids are maybe हम्म। reached up to this much extent, or these voids may हम्म। be reached up to this much extent. So in that case, but it is not equal to 100%. हम्म। And there, if you have the PPT, there it is 0 to 100%. हम्म। That is not equal to 0 and not equal to 100, ओके। right? And in case of clay, what will happen? More voids are there because small particles are there. हम्म। Sorry, here small particles. आप अगर उसका ये देखोगे, very small particles. So voids are more in clay soil as compared to स्मॉल voids का आप कैलकुलेट करोगे तो वो voids ग्रेवल या फिर सैंड से भी ज्यादा हो जाते हैं, हम्म। राइट? सो इन क्लेई के केस में void रेशियो हम्म। ज्यादा रह सकता है एज कंपेयर टू ग्रेवल और सैंड, क्योंकि उसमें voids पता नहीं चलते, वो विजिबली दिखते नहीं है, बट voids क्लेई सॉइल में ज्यादा रह सकते हैं क्योंकि उसमें स्कोप ज्यादा है, क्योंकि स्मॉल पार्टिकल्स आर मोर, very small particles as compared to that particles vv sometimes may increase हम्म। greater than 50% also, ओके। right? ओके सर। Okay, थैंक यू। anybody is having? One more question from one student, Yes, yes sir. Surbhi Chatte. She's asking about the soil structure and fabrication. Soil structure and fabrication that I will cover in last lecture, because that is different than our complete overall syllabus, which is not linked with the contents which we usually covered. That is somewhat different. That's why I will I will cover in last lecture.
Okay, thank you, sir. Okay. Any other? Is there any question to anybody? Okay. Thank you, sir. Thank you for joining the class and taking the lecture. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you.